నరేంద్ర మోదీ గుండెలో బండి సంజయ్ కుమార్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉందని తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మాజీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అన్నామలై అన్నారు. దక్షిణ భారతదేశంలో బీజేపీని బలోపేతం చేసేందుకు బండి సంజయ్కు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి ఇచ్చారని చెప్పారు. బండి సంజయ్ చేసిన పోరాటాలు దేశానికే ఆదర్శమయ్యాయన్నారు. అన్నమలై గారికి హృదయపూర్వక స్వాగతం పడుతూ మన తమిళనాడులో కొందరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నుండి కూడా వాళ్ళ నిత్య జీవితంలో డ్యూటీలో కూడా ఈ దేశంలో జరుగుతున్న అక్రమాలను అవినీతిని సహించలేక ఈ దేశ రక్షణ విషయంలో గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా నిర్లక్ష్యం చేసిందో దాన్ని భరించలేక ఈ దేశానికి దిశ దశ చూపించడానికి ఒక గొప్ప మహాన్ on behalf of a wonderful political leader, Bandi Sanjay Garu. You all know there is a definition of leadership, how a leader should be. A leader. And leaders should be ready to stay. Leaders are created by fighters on the ground. They are big fighters on the ground. If you look at Telangana politics for the last couple of years, Telangana has given not only a leader from Karimnagar, it has given a leader for South India, it is Bandi Sanjay Garu. Fighter, if we can say one person in Telangana who was able to bring the BRS government down, it is Bandi Sanjay Garu. The single person who fought and fought. Every single day he fought. In fact, Tamil Nadu Amar Yatra, Yetmakal Yatra was designed. If you look at Telangana politics for the last couple of years, Telangana has given not only a leader from Karimnagar, it has given a leader for South India, it is Bandi Sanjay Garu. Fighter, if we can say one person in Telangana who was able to bring the BRS government down, it is Bandi Sanjay Garu. The single person who fought and fought. Every single day he fought. భారతీయ జనతా పార్టీ తిరిగి కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తుందని కేంద్ర మంత్రి రామ్దాస్ అథవాలే పేర్కొన్నారు. సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో విలేకరుల సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ రైతుల సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెట్టారని తెలిపారు. కార్పొరేట్ కంపెనీల అభివృద్ధి కోసం చర్యలు చేపట్టారని తెలిపారు. वहाँ से एक सीट पर आरपीआई चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाकी के 16 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में जो मतलब 25 सीटें लोकसभा की है, उसमें हमारे शोभा नागेश्वर राव को जो हमारे विजयवाड़ा से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और बाकी के सभी सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू का जो अलायंस है उसका हम सपोर्ट करते हैं और विधानसभा में जो 175 सीटें विधानसभा की जो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, सभी सीटों पर हम चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी और बीजेपी का जो अलायंस है इसका हम पूरा सपोर्ट करते हैं। हमारे ब्रह्मानंद रेड्डी जी जो आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है आरपीआई के, तो उनके साथ बात करके हमने निर्णय लिया है कि 175 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पूरा चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और बीजेपी का समर्थन करेगी और आंध्र प्रदेश में जरूर जगन मोहन रेड्डी की सरकार जाएगी और वहाँ चंद्रबाबू नायडू जी और बीजेपी की सरकार वहाँ आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और जो 25 सीटें जो लोकसभा की है
उसमें कम से कम 20 से ज़्यादा सीटें वहाँ टीडीपी बीजेपी अलायंस को मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और इसी तरह मतलब आज मैं इधर आया हूँ, 10 तारीख को मैं विजयवाड़ा में जा रहा हूँ, वहाँ भी मैं मतलब चंद्रबाबू नायडू को भी मैं मिलूँगा, बीजेपी के नेताओं को भी मिलूँगा और आरपीआई का सपोर्ट वहाँ मैं अनाउंस करूँगा। तो यही आज मैं यहाँ मुंबई से आया हूँ और देश की स्थिति बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है 400 पार, तो 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए को 329 सीटें दी एनडीए के पास। सरकार आरक्षण का पूरा सपोर्ट करती है और दलित का आरक्षण, आदिवासी का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण और इकोनॉमिक लीडर सेक्शन का आरक्षण जो है इसका पूरा सपोर्ट करती है। और मोदी सरकार ने 10% आरक्षण इकोनॉमिक लीडर सेक्शन को दिया है। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को धक्का ना लगाकर 10% आरक्षण भारत सरकार ने दिया है और इसका सुप्रीम कोर्ट ने विरोध नहीं किया है। तो आरक्षण का इतना निर्णय लेने की बहुत जरूरी है। राहुल गांधी इसी तरह की गलत बात कर रहे हैं कि भाई आरक्षण निकालेंगे, इसलिए मैं मेरे पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर पास मैं कंप्लेंट दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, झूठी बात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए मतलब उनके ऊपर बार बार बोलने के बाद भी आरक्षण निकालेंगे, इसी तरह की गलत बात करना ठीक नहीं है और वो भी विषय है। और दूसरा, ये सरकार संविधान बदलेगी, तो संविधान बदलने की बिल्कुल कोशिश होगी नहीं। संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस संविधान को बहुत बड़ी ताकत दी है और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान बदलेगा नहीं। इसी तरह की भूमिका बार बार बोलने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया आघाड़ी के लोग, राहुल गांधी जी बार बार संविधान बदलेंगे, इसी तरह के अफवाहें फैलाकर एक बाजू में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं और दूसरे बाजू में भारत तोड़ने की बात करते हैं, समाज में फूट डालने की बात करते हैं, दलित मुस्लिमों को भड़काने की बात करते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पर इस विषय पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन के पास मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ और राहुल गांधी को समझ मिलनी चाहिए और उन्होंने आरक्षण निकालेंगे, संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र रुपये में इसी तरह की बातें करना ठीक नहीं है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। और जो